So what I'm doing is I am connecting both the study. The study from yesterday was from power. Hmm? And if you remember that it was, what was it saying? It was saying that words and thoughts, they don't have any power till it is infused with emotions. Emotions itna important hai. Emotions aa jaane se hi the manifestation starts. So emotions are so important, friends. What kind of emotion we have, it directs the kind of manifestation we are going to have in our life. Okay. And we said that negative emotion means you are focusing on things that you don't love. Positive emotion means you're focusing on the things that you love. And because you are focusing on the things that you love, that's why with positive emotions you can manifest. Now, this is the book from Abraham Hicks. Abraham Hicks, if you know, have you heard about things like channeling? आपने कभी सुना है channeling के बारे में? कि there are people who can really channel, जो एस्ट्रल प्लेन में बहुत एनलाइटन मास्टर्स हैं, वो लोग कभी कभी फिजिकल कुछ थोड़े इवॉल्व है, जो लोग चैनल कर सकते हैं, जो ले सकते हैं डाउनलोड इंफॉर्मेशन उनका, उनके थ्रू वो लोग बहुत कुछ पास ऑन करते हैं, या अर्थ की भलाई के लिए. So that's what channeling is. So Esther and Jerry were a couple. Esther was the man and Jerry was his wife. And one day suddenly Esther started channeling this man, and he said, "My name is Abraham Hicks." Hmm? And that's when he started giving a lot of information about how to live a life, how to manifest things, how to become happy in life, what are the ways you can manifest. But at the end of the day, उन्होंने ये भी बोला है कि यूनिवर्स में ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी चीजें हासिल करने के लिए नहीं बनाया गया है. चीजें हासिल हो जाएगा वो तो है, वो आपको तो कुछ तो देना पड़ेगा. दाना दाना दोगे तभी तो चिड़िया चुगने आएगी, इसीलिए मैनिफेस्टेशन इज लाइक अ दाना. बट इन रियलिटी ये मैनिफेस्टेशन जीवन टेक्निक्स, द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो बोल रहा है कि इसीलिए बनाया गया है यूनिवर्स में, ताकि यू फील गुड. बिकॉज ओनली व्हेन यू फील गुड you can manifest, and only when you feel good you can connect to the source. जितना आप फील गुड करोगे उतना यू आर क्लोजर टू द सोर्स एनर्जी. सो मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो एक बहाना है, बट इन रियलिटी वो मैनिफेस्टेशन करते करते वो तो हो ही जाएगा आपके जीवन में, लेकिन वो करते करते क्या होगा, आप हाई इमोशंस में जब रहोगे, आप सोर्स से कनेक्ट करते रहोगे एंड स्लोली स्लोली एनलाइटन हो जाओगे, बिकॉज आप हाई हाई एनर्जी स्टेट में रहते हो. सो ये बुक जो है, ये दिस इज अगेन अ चैनलिंग बुक. इस बुक का नाम है आस्क एंड यू शैल रिसीव ऑफ अब्राहम हिक्स. उन्होंने थ्रू एस्टर एंड जेरी चैनल किया. सो जेरी चैनल करते थे और एस्टर एस्टर चैनल करते थे और जेरी यूज टू राइट. So this is how I think they started writing books. And so यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं जो पावर में हमने पढ़ा है. सेम थिंग इट इज टॉकिंग अबाउट. इट इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इमोशंस, हमारे डिजायर कितना, हमको जीवन में बहुत कुछ चाहिए, वी वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाउ स्ट्रांग इज आवर डिजायर डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग आवर इमोशंस आर. Whether it is weak or strong will determine how, what our, in which kind of degree our desire is. इसलिए बोलते हैं कि जितना strong desire, जितना strong emotion, that means you have very strong desire, so the chances of getting manifested soon is faster. Okay, but at the same time strong desire का मतलब हमेशा अच्छा नहीं है. He is saying that sometimes when our emotions are negative, we still have strong desires, but these desires are working against us, not for us. Okay, मुझे ये चाहिए, as for example मुझे एक घर चाहिए. ओके, लेकिन मुझे कभी घर नहीं मिलता है, जितना भी कोशिश करती हूँ घर चला जाता है. कितनी बार मैंने कोशिश किया, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है. या फिर मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जितनी बार कोशिश करती हूँ कोई और ले लेता है, मेरे साथ बॉस हमेशा ऐसा बिहेव करता है, मुझे ये चाहिए. लेकिन you are focusing on the negative emotion. Because you are focusing on the negative emotion, even आप partners or something, हमेशा उसके साथ प्रॉब्लम ही क्यों होता है, प्रॉब्लम ही क्यों होता है इतना. Instead of that, if you really want things to get better with your partner,
or get a promotion or something like that, instead of focusing on क्या बुरा है उस एरिया में, तो बिकॉज वो भी इमोशन आपका डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में आपके डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. इट इज वर्किंग अगेंस्ट यू. इट इज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर but working against you, not for you. But the moment you shift it to, I'm expecting, I know things are bad now, but I know it is going to be all right. Expectation, high expectations, okay, enthusiasm, joy. These are the things that really, intensify the emotions, positive emotions, which intensifies the desire in a positive way, which works for us. Joy. So यहाँ पे बोल रहे, if you are strongly thinking positive desires like expectations, enthusiasm, joy, you have a strong desire working for you. Positive desires like expectation, expectancy, enthusiasm, joy, these are positive desire emotions. Okay. And desire. And resistance क्या होता है? जहाँ पे, if you are strongly thinking negative, like frustration, anger, helplessness, then you have a strong desire but working against you. वही मैंने आपको बोला, right? Next, let us come. So now we understand that, okay, I need a desire, but this desire has to be positive, can be positive only when I'm emitting positive emotions, so that it works for me. लेकिन उसके साथ क्या है, बिलीव भी होना चाहिए. आप इमोशन बहुत रिलीज कर रहे हो बिकॉज किसी ने सिखा दिया कि अच्छा अच्छा फील करो, अच्छा अच्छा फील करो, पर डीप डाउन कहीं पे आप बिलीव नहीं कर रहे हो कि यू डिजर्व दिस, यू बिलीव दैट यू विल गेट दिस. नहीं हो रहा है. तो क्या होता है, ऐसा हो सकता है आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो बहुत कष्ट के साथ मिलेगा. अगर आप बिलीव नहीं करते हो कि ये आप डिजर्व करते हो और ये आपके जीवन में आएगा ही आएगा, तो वो शायद आएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस, इफ यू आर कीपिंग द पॉजिटिव इमोशंस ऑन, वो शायद आएगा, लेकिन with hurdle. But when you start believing, trusting that it is going to come to you, ye aayega hi aayega, and it will come with very less hurdle, very smooth. That's what Abraham gives an explanation. Okay. फिर डिजायर को, हमको डिजायर चाहिए, बिलीव कर रहे हैं कि हमको ये मिलेगा ही मिलेगा, ऑलरेडी फीलिंग एज इफ इट इज कमिंग टू यू, इट्स ऑलरेडी योर्स. बट वो बोल रहे कि रजिस्टर, जीवन में हम कितना कितना कुछ सोचते हैं ना, होल डे में ही हम कितना कुछ सोचते हैं, तो सोचो हम फुल जीवन में कितना कुछ सोचते हैं. वी थिंक सो मच, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट when you are so thinking so much, the universe also doesn't know what you actually need. आप तो बहुत जगह में, अगर ये होता तो अच्छा होता, अगर वो तो होता तो अच्छा होता, बहुत कुछ ऐसे सोचते हो. but actually what you need can be registered if you hold positive emotion, dreaming about that desire for 17 seconds continuously. Abraham says then that it gets registered. Gets registered in the universe's memory कि yeah, संजुक्ता को ये चाहिए, सुचिता को ये चाहिए, स्वागता को ये चाहिए. So this is how it gets registered in the universe's memory. Second is desire को register हो गया, बहुत टाइम इसको फील किए, 17 सेकंड तक आप इसको एक अच्छे इमोशंस के साथ आपने रजिस्टर किया. फिर उसके बाद और उसको अगर मैनिफेस्ट करना हो, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट डिजायर, देन एटलीस्ट 68 सेकेंड तक उसको कंटिन्यूअसली आपको अच्छे इमोशंस के साथ, विद बिलीफ के साथ, गुड इमोशंस एंड बिलीफ, ये दो चीजों के साथ आप उसको पकड़े रखो. इमोशंस को फील करते रहो, विजुअलाइज करते रहो, हाँ मुझे मिल गया मिल गया मिल गया, फॉर 68 सेकेंड. दैट मीन्स वो डिजायर मैनिफेस्ट करने लग गया है. अगर आप बहुत 68 से भी ज्यादा करते हो तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा. अगर आप 68 सेकेंड करके और जीवन में कभी नहीं किए, तो वो कभी ना कभी तो होगा, इस जन्म में ना सही नेक्स्ट जन्म में होगा, लेकिन होगा, क्योंकि वो रजिस्टर हो गया है, वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा. ओके. बट अगर आप उसको फास्ट करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूअसली उसको हमेशा, नॉट लाइक अ फैनेटिक में प्रॉब्लम है, मैंने बोला है, सरेंडर भी करना है, अलाउंस भी करना है, बट नॉट लाइक ए फैनेटिक, बट एवरी डे रिमेंबर करना कि दिस इज व्हाट आई वांट, एंड उसको फील करना और फिर छोड़ देना, सरेंडर कर देना. एवरी डे थोड़ा तो याद करना पड़ेगा ना, यूनिवर्स को याद दिलाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट आई वांट. ओके. सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. हाँ. एंड देन और एक चीज होता है कि सोर्स एनर्जी ना, जो यूनिवर्स की पावर, आज जो हमने क्या किया मेडिटेशन में, हमने क्या किया, वी अलाउड द एनर्जी ऑफ द फुल मून टू एंटर अस, द मून्स
healing energy to enter us. मून का healing energy to enter us का मतलब है यूनिवर्स का फुल हीलिंग एनर्जी हम में एंटर कर रहा है, बिकॉज मून इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो जो भी आ रहा है पूरे तरीके से हमारे अंदर आ रहा है. लेकिन बोल रहे कि जो सोर्स जो हम में घुसेगा, कैसे घुसेगा, हाउ विल इट एंटर. सोर्स सोर्स तो हमेशा घुसने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस देते हैं, नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, ये सब फील करते रहते हैं इमोशंस, तो सोर्स एनर्जी घुस नहीं पाता है हम में. ओके, दैट्स व्हाई गुड इमोशंस, सी गुड इमोशंस आर सो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. कल के पावर वाला चैप्टर में भी गुड इमोशंस पे फोकस, आज का आस्क एंड यू शैल रिसीव में भी गुड इमोशंस पे फोकस. कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम 2 दिन क्लास करने के बाद फिर भूल जाते हैं कि गुड गुड इमोशंस कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि सोर्स एनर्जी हम में तभी घुस पाएगा जब हम गुड इमोशंस में अपने आप को भर देंगे. Okay, then what it is talking about, it is talking about appreciation, the highest kind of feeling that the source enjoys, and it will open itself up for you to connect full alignment source के साथ, universe के साथ. हम तो meditate करते हैं, but complete alignment में हमेशा नहीं जा पाते हैं, full one नहीं बन पाते. लेकिन अगर full one बनना चाहते हो, तो बोल रहे कि the highest emotion that you can emit to become full one with the universe is the emotion of appreciation. जब अपने आप को आप अप्रिशिएट करते हो, जब आप सबको, आसपास के लोगों को आप अप्रिशिएट करते हो, तो you know you are aligning yourself with the universe. ना हाईएस्ट अलाइनमेंट होता है उस मोमेंट में. एंड द मोमेंट आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, आप उतर जाते हो, अलाइनमेंट से उतर जाते हो. इसीलिए ना बाहरी दुनिया में ना लोगों को, लोग बोलते कि देखो मुझ में इतनी बुराई है, ये है, देखो मैं कितनी अच्छी हूं, मैं अपने आप को कोसती भी हूँ, देखो मैं बुरी हूँ, ऐसे बोलती हूँ, दूसरे बुरे हैं वैसे बोलती हूँ, एंड एवरीथिंग. एंड इट इज अ गुड हैबिट, एज इफ व्हेन वी आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ. बट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ हैबिट, बिकॉज आप भूल गए कि आप कौन हो. आप अपनी खामियां को, you have created an identity around the superficial characters that you have made. Okay, so you've said, oh, I'm an angry lady, oh, I'm a jealous lady, oh, I'm this, oh, I'm that. And you know, like I'm snobbish, ये वो, और मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं इरिटेटेड भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, मैं बुरी हूँ, या फिर दूसरे ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों है. So what I'm doing is that I forgot that actually I am God. I am that source. The source is running through me. But मैं उन सब चीजों में खुद को क्रिटिसाइज करती हूँ, दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगती हूँ. सो हम कैसे फिर से, हाउ कैन वी गो बैक टू द अलाइनमेंट? बाय रिमेम्बरिंग हु वी रियली आर. हाँ, एंड देन हम जब रिमेम्बर करेंगे हु वी रियली आर, वी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आवर लाइव्स जस्ट द वे. ठीक है, मुझ में ये खामियां हैं, ओके, आई हैव दिस प्रॉब्लम, I have these flaws, but they are not me. They are just part of me, and they are also superficial. Deep down, I'm God. And this is what it is talking about. That remind yourself, absolute alignment means you know the following things, and you start appreciating the following things in your life. That is, first point here, you are free. Okay. The first point. Second is you are powerful. Okay. Third is you are good. Okay. Fourth is you are love. Free, powerful, good, and love. Okay. So, and then the fifth point is you have value, you have purpose, and all is well. So सोचो हम लोग कितने प्रेशियस हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्यारे हैं, लेकिन हम अपनी खामियां को उस पे ही फोकस करते करते अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और दूसरों की खामियां को भी फोकस करते करते उनको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और क्या करते हैं, हम अलाइनमेंट से उतर जाते हैं, सोर्स एनर्जी से हम उतर जाते हैं. ओके, इसलिए हमारे जीवन में फुलफिलमेंट, विशेस फुलफिल होने में इतना टाइम लगता है. ओके, hope you have written down the points. You are free, you are powerful, you're good, you're একটু loved. একটু আরেকবার বলো না. Okay, you are free, you are powerful, you are good, you are love. You have value, you have purpose, and all is well. Okay? Isn't it beautiful, huh?
हम You कितने have precious you है. have value, you have purpose, and last it All था. is well. Okay. हम्म? लेकिन हम फोकस क्या करते हैं, मैं ये हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इस प्रमोशन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ. बिलीव ही नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे प्रमोशन? बिलीव ही नहीं करोगे तो ये जॉब कैसे मिलेगा? हम्म? खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो पार्टनर का प्यार कैसे मिलेगा? खुद से प्यार नहीं करोगे और पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे पार्टनर तुम्हें प्यार करेगा. खुद को ही भगवान नहीं मान रहे हो, सोच रहे हो कि कोई और मुझे प्यार करेगा, कोई और मेरा क्वालिटीज देखेगा तो मैं स्पेशल हूं, अदरवाइज नहीं हूं. मैंने हमेशा सिखाया है ना, खुद को बोलो मैं खुद की फेवरेट हूँ. ओके. इट इज नॉट एरोगेंस, इट इज रियलाइजिंग हु यू रियली आर. ओके. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. ওই যে একটা জিনিস শেয়ার করছি। হ্যাঁ. এখন এখন মানে মিষ্টিকে যখন সকালে স্কুলে নিয়ে যাই, হুম. 55 না খুব এক্সট্রিম ভিড় হয়, লাগে মনে হয় যেন কলকাতার বাসের মতো। হুম. তো হুম. তোমার মানে এমনও হয়েছে অনেকের বাচ্চা উঠে গেছে, প্যারেন্টস উঠতে পারেনি, মানে ভিড়ের জন্য অ্যালাউ করেনি। তো হুম. আমাদের কল করে বলছে একটু টেক কেয়ার করো, এরম ব্যাপার। তো ওকে. আজকে এমন ভিড় হয়েছে, একটা বাচ্চা খুব ক্লোজ আছে, কিন্তু রিসেন্ট ওর মার মিসবিহেভিয়ার করছে জানি না কেন। তো বাচ্চাটা সিট পায়নি। তো আমি বলছি কিছু না মনে করলে আমার কোলে বসতে পারিস, কেননা যেইটুকু জায়গা আছে আমি দাঁড়ালে মানে ও অ্যাডজাস্ট করতে পারছে বাচ্চা বলে, আমি পারবো না। হুম. তো ও হুম. আমার হুম. কোলে বসেছে। তো বিশ্বাস করবে না, हिंदी পরে हिंदी যখন हिंदी একটু हिंदी हिंदी हिंदी. आई फॉरगॉट. अच्छा वो मेरे गोदी पे बैठी है, क्योंकि इतना मैंने लिटिल जगह था, मैं हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो बैठने के बाद 2-3 स्टॉप जाने के बाद फिर एडजस्ट हो गया, उतर गए बाकी सब लोग। उसके मम्मी भी सीट मिल गया, उसके फ्रंट में सीट था, बोला आजा मेरे पास। तो आने के बाद दवाई देने के टाइम पे बोला क्यों गई गोदी पे, तुझे इधर खड़ा होने में क्या प्रॉब्लम था, ऐसा बोला। तो मैंने ऑब्जर्व किया लेकिन कुछ नहीं समझा। अभी मिष्टी स्कूल से आने के टाइम पे बोला हाँ तुम्हें क्या सबको अच्छा लगता है तो इसलिए तुम सबको ही हेल्प करोगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में कैसा बोल रहा था, मुझे सुनाई दिया। मैंने बोला क्या वो बोले बोले, लेकिन मेरा वो जो नेचर मिष्टी है ने मेरा वो मिष्टी नेचर है। मिष्टी ने बोला, राइट? मिष्टी ने बोला. हाँ मेरे लड़की ने बोला। तो ओके. मैंने ओके. बोला मेरा जो नेचर है उसके हिसाब से मैं चलती हूँ, वो क्या करती है मैं नहीं देखती हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी शुड तो मूव. उसके लड़की भी वही बोल रहा है, स्वागत ने आंटी ने मुझे गोदी पे लिया तो इतने बड़ी क्या बात हुई। मैंने वो भी हम्म. रियलाइज कर रही है, लेकिन उसके मम्मी ने एरोगेंस से उसको डांटा ऐसा हम्म. करके। हम्म. हम्म. तो मेरे साथ ना बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, मेरे साथ बहुत হ্যাঁ গো, ऐसे केसेस हुए এটা हैं. মেলে মনে হয় তোমার সাথে আমার কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন নাও থিংস হ্যাভ, इट ऑल्सो मीन्स यू हैव इवॉल्व, थिंग्स हैव गॉन डाउन नाउ. पहले तो बहुत रिलेशनशिप को लेके बहुत पंगे होते थे, लाइक बेकार का मुझे देखो लगता है कि लोग अभी मेरे वो पीछे जो पड़ते वो रहते हैं. लेडी की बात सुना, पहले 2-3 महीना पहले क्या खराब लगती थी तुम, मैंने थोड़ा भाबती क्यों करती है, अभी वो नहीं लगता। सुना हाँ. सुना निकल गई दिमाग से भी। So many things happened with me, and the more I was trying to do good, the more things were getting worse. So many things. Even it has happened कि इतना, my some of my distant relatives, they maligned me, and later the truth came out, and many things happened. Okay, many things happened, and finally उनको उनके जीवन में प्रॉब्लम में फिर they in their worst of the problem, nobody's there, they found me there standing beside them. Okay. So then, so I will, क्या है, तो it's like somebody, मेरी मेरी एक कजिन है, तो वो मुझे बोलती है तेरा तो तू तेरा तो स्वभाव मुझे पता नहीं, तुझे कोई आके तेरे ऊपर ऐसे ऐसे जंप करेगा, तुझे ट्रैम्पल करके तोड़ के रख देगा, फिर कुछ महीने बाद आएगा और बोलेगा संजुक्ता आई हाँ। हैव दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, और तो फिर उठ के फिर से जाएगी हेल्प करने. मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तेरे जैसा नहीं बन सकती, शी सेज दैट. Okay. But I don't suffer like that anymore. I used to suffer a lot like that, where people used to trample on me, and bina but also it was happening because karma bhi tha. You also have to admit कि karma tha. मुझे, you हम्म। cannot just blame people. I had karmas of suffering like this. It got over, so now at least touch wood I am in a lot of peace. Hmm? So हम्म।
दोनों साइड से ही समझना पड़ेगा कि कर्मा है, ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, आपका भी कर्मा है, एट द सेम टाइम कुछ लर्निंग्स भी है इसीलिए आपके जीवन में हो रहा है। जब आप उससे सीख ले लोगे ना, देन पीपल विल स्टॉप बिहेविंग दैट वे विथ यू, यू विल गेट अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल ऑल अराउंड राइट नाउ, टच वुड, like wherever I go, the kind of support you saw, right? I was telling, see, there, क्या क्या जरूरत था उस भैया को मेरे साथ 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहना। आई एम टेलिंग, आई वाज फीलिंग सो अशेम्ड, ऐसे होता है ना लोगों का वो जो खुददारी है कि ओ माय गॉड हम्म किसी से हेल्प ले रही हूँ। मैं बार बार भैया को बोल रही हूँ, भैया प्लीज यू जस्ट गो, आई विल मैनेज, यू जस्ट गो, आई विल मैनेज। बट ही सेड, क्या काम है मेरा, सैटरडे का दिन है, मॉर्निंग है, कोई काम नहीं है, मैं क्यों जाऊं करके। एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई गॉट सेव्ड, because he was, men sometimes, women तो इमोशन में बह जाते हैं, और इतनी पैनिक कर रही थी, इतना जल रहा था कि my brain stopped working, completely stopped working, because it was so much burning that I could not think what is the next step. Because he came, he was able to think so clearly. He realized that ice cubes are needed, ice packs are needed, everything एकदम करते करते एक के बाद इतने इतने आइस क्यूब पैकेट्स ही बॉट। ही डिडंट इवन थिंक कि पैसा आएगा नहीं आएगा, कुछ ही डिड नॉट थिंक, ही जस्ट केप्ट बाइंग, ही जस्ट केप्ट बाइंग एंड केप्ट हेल्पिंग मी, राइट। सो ये आज आज का दिन ऐसा है कि जहाँ पे मुझे बिना मांगे ही हेल्प मिल जाता है, right? So you will also see a day like that, Swagata. Also another thing, remember, Swagata, um, sometimes we also have to check our own behavior. Okay, Swagata, অনেক সময় মনে হয় যে আমরা তো খুব ভালো, सब सब कभी 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 हमको लगता है कि we are very good, people are doing this with us. You also have to check, there might be some behavior which triggers people, maybe blunt attitude, maybe innocent but don't know how to speak attitude, कुछ भी बोल दिया, समझ में नहीं आया कि ये किसी को हर्ट कर सकता है, समझ रहे हो। सो बिकॉज दिस आई हैव चेक्ड एंड आई वर्कड ऑन, आई रियलाइज्ड, मैं हमेशा दूसरों की गलती नहीं देखती हूँ, आई ऑल्सो सेड ओके मैंने ऐसे बात किया, तब तो बोल दिया, समझ में नहीं आया कि ये किसी को हर्ट कर सकता था, बाद में समझ में आया, अरे ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोले, किसी को भी हर्ट हो सकता है, किसी को भी लग सकता है, मैंने तो बोल दिया सोच बिना सोच के। So then when you start focusing and working on your own behavior, on your own, how you present yourself, how you talk, people will start also reacting in a different way. One is karma, another is you have to keep working and checking your behavior. Okay. कभी कभी we women ना out of joy बात करते करते इतना बात कर देते हैं, कभी किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। Okay. So see, check on all these things. Yes. Suchita. Yes, the Yes. Yesterday's class was similar to today, isn't it, Suchita? yeah. So how important it is to feel emotions. Very important. And I can see the difference with me also. Today I had an interview. Hmm. I was totally relaxed, and Okay. I was doing something, some meeting, but that pressure, I have not felt that. I Hmm. prepared, but I mean, without planning or without preparation, I did not go. I Hmm. did all my preparation, and as Hmm. you said, help. Uh, People are there to help. Uh, Hmm. I am working. I told you the whole story. Hmm. So, my manager right now with whom I'm working Hmm. asked my peer to help me, take her mock interview. And because they both are working with me, so they can't check my interview. So other Hmm. function, Hmm. Hmm. part Hmm. of supply chain, she took my interview. So Hmm. we are not Hmm. aware what she is going to ask because she is not my direct function. Hmm. Hmm. So Hmm. as per the differ uh, code of conduct or conflict of interest, they Hmm. can't take my interview. But the Hmm. way he had both tried to help me, I Hmm. just thought of that. See, yesterday you shared your story. So while Hmm. entering the office, and I'm just thanking Sri Charna and like, thank you, thank you, Siddharth, like helping me. Hmm. This preparation not only helped me in this interview, maybe I'll select
or not select, whatever is in destiny. But it also helped me if I'm going to give an interview outside of IKEA or some other position. So I took it as a gratitude, like you have shared yesterday. So yeah, so Ah. I can say calmness previously, like that day also, while when I get uh, frustrated or anxious, my speed of talking goes very fast, very fast. Personally, Hmm. I can see now it is very much slow down. Very much. Hmm. Normal talking also, it's very slow. Not in Hmm. hurry. Hmm. Muji, Muji is a spiritual guru. He lives in UK, I think, Muji. You should search him. उसने बोला है कि Yes. हमको हमको क्यों बाहर लोगों से डर लगता है, पता है, हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हम ना आर्टिफिशियल हो जाते हैं बाहर, राइट? कि Hmm. बोलते हैं कि हमको ईगो 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 क्या करता है, उस हमको ईगो चाहता है कि हम बाहर जाके अपने आप को प्रेजेंट करें, Hmm. प्रेजेंट, राइट? Hmm. प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं हम अपने आप को बाहर जाके। एंड इस वजह से क्या होता है, हमारा जो प्योर जो नेचर है ना, वो मर जाता है। और इसीलिए हमको ना ज्यादा देर बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है लोगों से, और हमको लगता है लोग हमें पसंद नहीं आते, या फिर ऑफिस पसंद नहीं, या जगह पसंद नहीं। पसंद इसलिए नहीं क्योंकि हम आर्टिफिशियल बन गए, और कितना देर आपको अच्छा लगेगा आर्टिफिशियल बने हुए, Hmm. Hmm. राइट? तो मुझे बोल रहा है, जब हम अपने प्योर नेचर में रहना सीख जाते हैं ना, ईगोलेस स्टेट, कि मैं जो हूं वो हूं, उस स्टेट से मैं जब निकलूंगी ना, एंड मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग मुझे क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं। तब देखना हमारी बातें भी फास्ट नहीं होगी, राइट? Hmm. Hmm. फास्ट भी हम इसीलिए करते हैं कि मुझे अभी प्रेजेंट करना है। डिड यू गेट Hmm. इट? आई Hmm. हैव टू Hmm. प्रेजेंट माई सेल्फ, आई हैव टू शो माई सेल्फ हाउ गुड आई एम। डीप Hmm. डाउन एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, Hmm. राइट? Hmm. लेकिन मुझे अगर लगे कि मुझे क्या है, मैं तो अरे भगवान हूं, अगर ये वाला समझ में आ गए, राइट, कि आई Hmm. एम होल एंड कंप्लीट जस्ट द वे आई एम, I no longer will have the pressure of presenting or acting, and then my automatically my words will go in my own pace. कुछ कुछ लोगों का जैसे नेचर ही है थोड़ा फास्ट बात करना, दैट इज फाइन। Hmm. अगर घर में भी ऐसे बात करो, बाहर भी ऐसे बात करो, दैट्स फाइन। बट सम पीपल, सडनली they will do a shift, right? Hmm. Hmm. That means Hmm. you are going into an acting mode. Huh? Hmm. Then only you come back to the egoless state. Tell yourself, you are goddess, you are divine, you are these qualities that you are, Hmm. right? That's Right. when you will no longer have any pressure of even interview will feel like water. अरे ठीक है। I never took it in like in my past. Never took into. I enjoy actually giving interview. Hmm. I feel Hmm. like it's more interaction and checking on myself. Hmm. 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 Am I ready? Am I self assisting myself? Self auditing. Am I able to Hmm. handle this Very nice, situation? very nice, very nice, So, very nice. Okay. um, So so इसीलिए this is also for Swagata. Remember, okay? When you go out, don't try to act. Acting comes from ego state. আমি কারো থেকে কেউ আমাকে কত ভালোবাসবে সেইটার বেসিসে when we start going out, না না এই জিনিস মাথায় থাকে না। না মনে থাকে না, কিন্তু ডিপ ডাউন আমরা করি এটা। এত it is so common in everybody, only enlightened masters don't act in reality, frankly speaking. Only enlightened masters mostly don't act. Everybody we have a mask. Till the time you have an ego, you will have a mask. But slowly you have to drop that mask. That you will go and you will just stand there. You will not feel like talking. ओ कैसे हो, देखो आज का दिन कितना अच्छा जा रहा है, ओ वाह देखो सन कितना ब्राइट है। जैसे yeah, people जैसे talk like this actually, and I felt why I do not have anything to share. हाँ, Like how their thoughts and how they can talk on any topic हाँ, for नॉन anything. Like स्टॉप। एंड स्पेशली इन इंग्लैंड डेनमार्क में ना एक बेसिक नेचर है, कुछ नहीं है तो सन पे डिस्कस करो, क्योंकि सन तो आता नहीं है। yes. ओह टुडे द डे इज सो ब्यूटीफुल, वाह। मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, मैं जब भी टैक्सी लेती थी, टैक्सी ड्राइवर, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, आई सेड या, उसके साथ मुझे या करना पड़ता था। और मुझे लगता
कहा बेटा इंडिया, बेटा इंडिया, वहां पे देखेगा कि सन हमेशा 24 घंटे चलता रहता है, तेरा ब्यूटीफुल डे बंद हो जाएगा। Okay. So, friends, yes, we had a good laugh. We also had a good understanding. So, try to just class में उसको मत सुनो, जो मैंने बोला है ना वो थ्रू आउट द डे थोड़ा रिपीट करो अपने दिमाग में कि क्या बोला संजुक्ता ने, क्या क्या पॉइंट्स थे, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन वर्क ऑन, अप्लाई। ओके, दैट्स व्हेन इंटीग्रेशन हैपेंस। इंटीग्रेशन सिर्फ क्लास में नहीं, हमेशा उसको फिर से रिपीट करना, समझना, दैट्स व्हेन बॉडी में वो इंटीग्रेशन हो रहा है, वो लर्निंग। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू Thank टुमारो। you. अच्छा, टुमारो थोड़ा लाइट स्टमक में आना, बिकॉज टुमारो इज फुल मून। हम लोग पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, कोई स्टडी नहीं होगा। लाइट स्टमक और 2 hours बिफोर खाना खा के खत्म कर देना। ओके, बाय बाय, Bye bye. Good night. गुड नाइट।